Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning to all. So today we will have one revision class. Revision starting from the arthrology. The first discussion was carried out on joint, I think. ठीक है ना? So अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया हो पढ़ना या नहीं किया हो ये नहीं पता मुझे, लेकिन आर्थ्रोलॉजी में अगर अपन एट अ ग्लांस देखें तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, देन स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जॉइंट, ठीक है ना, एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट. तो देयर आर यूजुअली टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर जनरल आर्थ्रोलॉजी. वन इज राइट the structure of a synovial joint. Structure of synovial joint मतलब आपको वो सारा कंपोनेंट लिखना है जो मैंने आपको बताया था. Synovial joint means having the synovial fluid, a joint capsule, a joint cavity, articular surface covered by articular cartilage and ligaments. So these are the essential structures present in any synovial joint. ठीक है, तो आपको अगर आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, देन यू हैव टू राइट अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक है, और एक यू हैव टू सपोर्ट योर राइट अप विद डायग्राम्स. मैडम ने भी बताया होगा कि एनाटॉमी में डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है. आपको डायग्राम जरूर सपोर्टिव बनाना है, उससे वेटेज और बढ़ जाता है. आपको चीजें लिखना है, लिखने के साथ डायग्राम भी बनाना है. ठीक है, तो आर्टिकुलर सरफेस, देन आर्टिकुलर कार्टिलेज, देन जॉइंट कैप्सूल. जॉइंट कैप्सूल में चर्चा हुई थी, याद करो. इनर साइनोवियल, आउटर फाइब्रस, इनर इज साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन हैज द साइनोवियल सेल्स which secrete the synovial fluid, and outer is fibrous membrane which is also called as capsular ligament, right? So outer fibrous layer of joint capsule is also called capsular ligament. Then synovial fluid. Synovial fluid, you have to write about the synovial fluid. Synovial fluid resemble to the albumin, egg albumin. ठीक है, egg albumin, and it contains hyaluronic acid, and hyaluronic acid decide the viscosity of synovial fluid. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है. पीएच भी शायद डिस्कस किया था उस समय, है ना. पीएच जो था आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग था. अभी एग्जैक्टली आप लोग देखिएगा, उस समय बताया था मैंने पीएच 6.7 आई थिंक, ऐसा कुछ बताया था पीएच उस समय, पीएच ऑफ साइनोवियल फ्लूइड. तो यू हैव टू राइट अबाउट ऑल द थिंग्स. में लिखना है आपको, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में आप लोग को लिखना है. ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज में ही आपको जो है it is not actually slightly alkaline, not pH is not acidic, it is slightly alkaline. ठीक है, pH of synovial fluid is slightly alkaline, you must remember this. pH is slightly alkaline. ठीक है, then मैंने आपको दो चीजें बताई थी, साइनोवियल बर्सा एंड साइनोवियल टेंडन शीथ. ठीक है, साइनोवियल बर्सा आप लोग को याद होगा. साइनोवियल बर्सा क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस समय, फिर आप फिर से रिवाइज करना. साइनोवियल टेंडन शीथ, शीथ का मतलब क्या है, चारों तरफ रैपिंग है. सो साइनोवियल टेंडन शीथ विल
be present wherever a tendon of any muscle is traversing through a canal like structure, like when there is injury to the tendon from all the sides, and there is chances of injury of the tendon from all the sides, it is traversing in some sort of like canal, then there is need of some structure, tendon sheath, synovial tendon sheath, which wrap the tendon from all around and protect the tendon. So that is called synovial tendon sheath. ठीक है. And synovial bursa भी बात हुई थी. Synovial bursa actually क्या है? It is outpocketing from the synovial membrane to the adjacent superficial bony structure or tendon structure wherever it is there is chances of friction. ठीक है ना. जैसे अगर हम अपने में देखें तो हमारा जो एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट here are presence of synovial bursa, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें it is quite superficial. तो synovial bursa it is a filled sac like structure. ठीक है, it is just like pillow. ठीक, एक cushion के जैसा है. So this cushion is placed between the tendon and bone so that there is both will be protected, tendon will be protected and periosteum bone will be protected, both the things will be protected by this synovial bursa. ठीक है, तो याद रखना है synovial bursa क्या है, synovial tendon sheath क्या है, ये दोनों की चर्चा आप कर सकते हो whenever you are talking about the joint capsule. ठीक है, और synovial membrane की जब आप बात करेंगे तो आप इसकी भी चर्चा कर सकते हैं, synovial bursa और synovial tendon sheath के बारे में. ठीक है, फिर articular cartilage is hyaline in nature and it is bluish in color. It is devoid of vascular supply, बताया था मैंने. ठीक है ना, hyaline in nature, it is not having a direct blood supply. It covered the articular surface of uniting bone, and this articular cartilage is getting its nutrition through synovial fluid and ramifying blood vessels, मतलब जो adjacent blood vessels है वहां से और synovial यहाँ से it will get its nutrition. ठीक है, फिर इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के बारे में बात हुई थी. इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेजेस में क्या बताया था मैंने, कोई भी बताए, मुकेश सिंह. इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के बारे में चर्चा हुई थी उस समय, कुछ बताएंगे मुकेश? मुकेश, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुकेश, there is problem in network I think. कोई बात नहीं. बलवंत आप बताएं. मुकेश रहने दीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी. मुकेश, बलवंत भट्ट, बलवंत आवाज आ रही है? हेलो हेलो. हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो. हाँ बलवंत, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं ये पूछ रही हूँ, इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज, देन व्हाट विल यू से? क्या मैम कट रही है आवाज? क्या बोल रहे हो? इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज ये ज्वाइंट का पोर्शन है. ज्वाइंट हम रिवीजन कर रहे हैं, ज्वाइंट सबसे पहली क्लास सब पहले पढ़ाया था ना ज्वाइंट्स के बारे में, तब इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में भी बताया था. कुछ याद आ रहा है कुछ इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में? नो मैम, मेरा तो स्कल के बाद सही से पढ़ा हुआ है बिल्कुल. स्कल के बाद क्लास अटेंड किया है, तो अभी इसका पोर्शन फिर आप स्टूडेंट से ले लेना. यस मैम. है ना, मैटर है आपके पास कि नहीं है? ये इससे पहले का नोट्स नहीं है मेरे पास, स्कल के बाद का तो पूरा नोट्स है. नहीं, स्कल और के बाद गोस्ट करें, पे है. स्कल के पहले. हाँ, स्कल के पहले मैंने जॉइंट्स पढ़ाए थे, तो वो तो भाई वो भी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में भी आपके फर्स्ट टर्म में आना भी है, सिलेबस में दिया हुआ है ना, तो Yes, ma'am. अरेंज करो उसको भाई. सब आप स्टूडेंट्स को दिया है मैंने पहले भी.
यस मैम। कौन बताएगा भाई इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज एग्जांपल? Joint between the meniscus. Cartilage meniscus. वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है इसका मतलब। इशिता बता रही थी, इशिता। Yes, इशिता, ma'am. हाँ भाई इशिता बताओ। Ma'am, fibrocartilage present between two articular surface in joints. उसको क्या बोलते हैं, another term of that फाइब्रोकार्टिलेज? Intra-articular cartilage. हाँ, इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज। वेयर इट इज प्रेजेंट नॉर्मली, वेयर? Ma'am, between joints. हाँ नहीं, स्पेसिफिक जॉइंट, व्हिच इज नेम ऑफ जॉइंट? Meniscus. meniscus, yes, right, meniscus. Where meniscus is present, Ishita? इशिता कुछ याद है? menisci, where menisci are present? Ma'am, not remembering. Okay, menisci actually present in stifle joint, ठीक है? इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब भी ये देखो, एक तो है आर्टिकुलर कार्टिलेज रैपिंग द आर्टिकुलर सरफेस, राइट? देन टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा cushion, there are intra-articular cartilage like menisci which are present in stifle joint which between the femur and tibia, ठीक है? एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे फीमर और टिबिया को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगी चीज कि क्या रोल है मेनिस्काई का। मेनिस्काई हमारे में भी है ना, हमारा जो नी ज्वाइंट है वो एनिमल का स्टाइफल ज्वाइंट है, तो हमारे नी ज्वाइंट में भी पटेला है, हमारे नी ज्वाइंट में भी मेनिस्काई है, ठीक है? So why there is need of menisci? Actually, because the condyle of femur and tibia, proximal extremity of tibia, which is also called condyles. So both are not adapted to each other. मतलब वो भी this condyles they are knuckle like convex structure है, ठीक है ना? And proximal extremity of tibia is also not having concavity to accommodate these condyles. It is also somewhat flat to convex. तो अब भाई दो सरफेसेस आपस में मिलेंगी जो कि एडॉप्टिव नहीं है, देन देयर विल बी द मोर चांसेस ऑफ फ्रिक्शन, राइट? एंड डिस्टेबलाइजेशन, ज्वाइंट को इसकी स्टेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ना। तो इसीलिए सो दैट द मेनिस्काई व्हिच मेक मेनिस्काई दे आर द शी शेप, ठीक है ना? शी शेप फ्लैक्स हैं एंड दे मेक दिस कंडाइल्स टू अकोमोडेट, राइट? They accommodate these condyles because condyles are very convex structure. The menisci they have concavity and they accommodate the condyles and prevent the injury to the friction to the condyle and tibia. So that is and make the cushion also, ठीक है ना? क्योंकि no doubt बहुत सारा weight जो है अगर ह्यूमन बीइंग में भी देखा जाए, although एनिमल में देखें तो फोर लिम्ब कैरी मोर वेट, although यहाँ पर अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग में भी देखें तो हम बोलेंगे कि यस योर नी जॉइंट इज कैरिंग मोर वेट ऑफ द बॉडी, सो देयर इज नीड ऑफ सम कुशन लाइक स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन, ठीक है? सो दिस मेनिस्काई दे गिव कुशन, ठीक? इंट्रा-आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में बात, सुचर दे आर फाइब्रस जॉइंट, सिनार्थ्रोसिस, सुचर क्या है? सिनार्थ्रोसिस है, फिक्स ज्वाइंट है, इमूवेबल ज्वाइंट है, ठीक? तो सुचर्स मैंने 4 कैटेगरी बताया था, सुचरा सेरेटा, सुचरा फोलिएटा, सुचरा स्क्वामोसा, उसी को ही क्या बोलते हैं सुचरा स्क्वामोसा का हार्मोनिया, एंड सुचरा प्लेन सुचर, ठीक है? सुचरा हार्मोनिया Foliata. सुचर, यस प्लेन सुचर को सुचरा हार्मोनिया बोलेंगे, स्क्वामोसा को नहीं बोलेंगे, ठीक? So there are 4 type of suture. Sutura serrata is present between two frontal bone. Interfrontal suture is an example of sutura serrata. Then sutura squamosa. Sutura squamosa से आपको याद होना आना चाहिए स्क्वामस पार्ट, ठीक है ना? जब मैंने आपको टेम्पोरल और पेराइटल बोन पढ़ाया था तो स्क्वामस पार्ट से स्क्वामोसा यहाँ आया, फ्लैट स्ट्रक्चर एक्चुअली। स्क्वामोसा मीन्स फ्लैट। So sutura squamosa is actually it is a kind of overlapping suture. One edge overlap the another edge, and between the parietal and temporal bone, sutura squamosa is present. Then sutura harmonia or plain suture present between internasal, between two nasal bones. ये भी बताया था, ठीक है? Then sutura foliata, ठीक? तो
ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा थोड़ा सारी चीजें याद होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आना है तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें बननी चाहिए, कुछ भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है। देन आफ्टर फ्यूचर कॉम्पोसिस, कॉम्पोसिस किसका एग्जाम्पल है शान? आर्टिकुलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टीथ, implantation of root of teeth in alveolar socket alveolar socket. is an example of gomposis, ठीक है। it is also kind of fixed joint. इसके बाद आता है चिंडालिसिस। चिंडालिसिस का है क्या है मतलब है चिंडालिसिस? One bone fit into fissure. हाँ, one edge is fitted to groove Groove of another. groove of another bone, है ना, मतलब where the more stability is desired. So चिंडालिसिस is present between vomer and sphenoid bone, ठीक है ना, vomer and sphenoid bone, there is presence of चिंडालिसिस. Then syndesmosis. Syndesmosis, what is syndesmosis? यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर यूनाइटिंग, देखो फाइब्रस ज्वाइंट, ये सारे के सारे ज्वाइंट कौन से हैं? फाइब्रस ज्वाइंट है, मतलब यूनाइटिंग मीडियम इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनिशियली भाई ज्वाइंट क्यों बोला है? क्योंकि शुरुआत में भाई दो चीजों के बीच में ज्वाइंट बन रहा है तो ज्वाइंट तो बोलेंगे ही ना, ठीक है ना, बिकॉज दे आर यूनाइटिंग विद सम मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग द ज्वाइंट, बट द ज्वाइंट इज immovable, that's why they are categorized under immovable joint. So syndesmosis joint between the metacarpal bone of large metacarpal and small metacarpal. Horse की तो पढ़ी होगी, हॉर्स की लार्ज मेटाकार्पल स्मॉल मेटाकार्पल पढ़ी है ना, बताओ भाई लार्ज कितनी स्मॉल मेटाकार्पल होंगी हॉर्स में? शिवम तिवारी बताओ भाई, हाउ मेनी स्मॉल मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ हॉर्स? क्या मैं स्मॉल पूछ रही हूँ, टोटल नहीं पूछ रही। हॉर्स में हाँ 2, ठीक है ना। So 2 small metacarpals are present in case of horse. So these small metacarpal are attached or joined with large metacarpal bone. आप लोगों ने पढ़ा होगा it is posterior aspect. So there is kind of syndesmosis, ठीक है। The joint between metacarpal bones is an example of syndesmosis. Then joint between the costal cartilages is an example of syndesmosis, ठीक है। तो ये these all are example of fibrous joint, ठीक। Then cartilaginous joint में हम आए थे, cartilaginous joint में हमने पढ़ा था कि उस समय भी बताया था कि all fibrous joint are synarthrosis, but all cartilaginous joint are not movable joint, ठीक है ना। कुछ cartilaginous joint ऐसे भी हैं जो कि बाद में immovable हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज synchondrosis. Synchondrosis बताया था, it is a connecting medium is hyaline cartilage in this synchondrosis, ठीक है। And the junction between the sphenoid and occipital bone, sphenoid and occipital थोड़ा सा अब तो कल तो रिमाइंड नहीं होगा, आप लोगों ने डायग्राम वगैरह देखिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, देन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये भी बताया हुआ था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीजें जो है थोड़ा सा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगी, तो आप उसमें देखिएगा, चीजों को उसमें लिखा हुआ है, मैंने बताया था सब कुछ आप लोगों को, ठीक है। तो एक तो सिंकॉन्ड्रोसिस है, दूसरा क्या है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस में भी सिम्फाइसिस ज्वाइंट इज पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है ना, या एमपी आर्थ्रोसिस बोलेंगे किसको? सिम्फाइसिस को। सिम्फाइसिस इज एमपी आर्थ्रोसिस। सो हियर द कनेक्टिंग कार्टिलेज इज फाइब्रो कार्टिलेज। वहां पर क्या था? हाइलाइन कार्टिलेज था, कहां पर? सिनकॉन्ड्रोसिस में। यहाँ पर क्या है? फाइब्रो कार्टिलेजिनस है, ठीक। तो हियर एग्जांपल इज Pubic pelvic symphysis. yes pelvic Mandibular symphysis. mandibular symphysis भी बोल सकते हैं, ठीक कह रहे हैं।
फिर एक मैंडिबुलर सिनकॉन्ड्रोसिस भी टर्म बोला जाता है, बताया था मैंने। मैंडिबुलर सिनकॉन्ड्रोसिस किस में मिलेगा? Horse. हॉर्स में मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हॉर्स में। इन केस ऑफ हॉर्स द मैंडिबुलर जो symphysis become ossified later on, ठीक है ना? So that is why it is called mandibular synchondrosis in case of horse, ठीक है? और ये symphysis उधर भी मिल जाएगी, joint between the vertebral bodies, ठीक है ना? joint between the vertebral body, मतलब symphysis टर्म ना बोल उस चीज को आप मतलब इट इज ऑल्सो मीन्स काइंड ऑफ ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ठीक है ना? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? फाइब्रोकार्टिलेज ही आ रहा है बीच में, उसमें भी, ठीक। सो दिस इज ऑल कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। फिर इसके बाद हम आते हैं साइनोवियल ज्वाइंट पे। तो साइनोवियल ज्वाइंट क्लासिफिकेशन बताया है मैंने, ठीक। यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, मल्टीएक्सियल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ मूवमेंट। फिर इसके बाद हम पढ़ते थे हिंज, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट को और क्या बोलते हैं? गिंगलीमस बोलते हैं, हिंज और गिंगलीमस। तो हिंज सभी को पता है, लाइक एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। कार्पल ज्वाइंट भी एक हिंज में, हिंज भी है और उसमें आर्थ्रोडिया भी है। कभी कार्पल ज्वाइंट इज अ कंपोजिट ज्वाइंट, तो इट हैज ग्लाइडिंग मूवमेंट आल्सो, इट हैज हिंज मूवमेंट आल्सो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कार्पल में आपको देखने मिलेगा कि दोनों टाइप का मूवमेंट लिखा हुआ है, हिंज भी लिखा हुआ है बिकॉज एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इज आल्सो देयर, एंड आर्थ्रोडिया ग्लाइडिंग भी है, क्योंकि जो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट इज एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग, ठीक है। सो इसके बाद हम आते हैं ट्रोकोइड। ट्रोकोइड किसको बोलते हैं बताओ? ट्रोकोइड पिवोट को बोलते हैं, ठीक है। किसके बीच में मिलेगा ट्रोकोइड और पिवोट? एटलेंटोएक्सियल। बिल्कुल सही। ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज एग्जांपल ऑफ पिवोट ज्वाइंट। फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकुलर प्रोसेस बिटवीन द लंबार वर्टिब्री, दे आर आल्सो फॉर्मिंग द काइंड ऑफ पिवोट ज्वाइंट, उस समय ये भी बताया हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं एनार्थ्रोसिस, ENARTHROSIS। एनार्थ्रोसिस किसको बोलते हैं? एनार्थ्रोसिस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट को बोलेंगे, बिल्कुल सही। बॉल एंड सॉकेट इज आल्सो कॉल्ड एनार्थ्रोसिस। बॉल एंड सॉकेट एग्जांपल सभी को पता है, ठीक है। फिर एनार्थ्रोसिस हो गया, गिंगलीमस हो गया, ट्रोकोइड हो गया, आर्थ्रोडिया। आर्थ्रोडिया मींस ग्लाइडिंग, ठीक है। व्हेन वन सरफेस ग्लाइड ओवर द अनदर सरफेस देन इट इज कॉल्ड आर्थ्रोडिया। तो आर्थ्रोडिया मैंने बताया ना, कार्पल भी इसी कैटेगरी, कार्पल को आर्थ्रोडिया कैटेगरी में भी रखेंगे, हिंज की कैटेगरी में भी रखेंगे, दोनों में, ठीक। यू हैव टू स्पेसिफाई व्हिच, बिकॉज़ कार्पल जॉइंट इज एन कंपोजिट जॉइंट forming between the metacarpal, then intercarpal, then radioulnar, sorry, हाँ radioulnar carpal, ठीक है। तो ये कंपोजिट ज्वाइंट है, यू हैव टू स्पेसिफाई, ठीक। तो दिस इज ऑल का टाइप ऑफ ज्वाइंट। अब ज्वाइंट में आपको स्ट्रक्चर ऑफ द ज्वाइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट, ये अभी फोकस करना है। इंडिविजुअल ज्वाइंट नहीं पूछा जाएगा, मींस ज्वाइंट ऑफ फोर लिम्ब नहीं पूछे जाएंगे, इंडिविजुअल ज्वाइंट नहीं पूछा जाएगा, जनरल आर्थ्रोलॉजी पूछा जाएगा। तो जनरल आर्थ्रोलॉजी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इस क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स पढ़ी थी। तो क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने बताया था कि यूज जो इम्पोर्टेंट है फ्रंटल, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। और जो है बाकी छोटी छोटी बोन्स है, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो देखो जितना पढ़ाई है स्कल बोन्स पूछेंगे उतने में से ही, लेकिन जो इतना बताया है उसको जरूर पढ़ना है अच्छे से। एंड यू हैव टू डिपिक्ट विद डायग्राम आल्सो। डायग्राम जिनको नहीं बनता है तो थोड़ा थोड़ा उसकी प्रैक्टिस भी किया करें ड्राइंग की, ठीक। तो हाँ फ्रंटल का तो कर सकते हैं, जैसे फ्रंटल पूरा स्कल ड्रॉ कर दो आप। स्पेसिफिक बोन का को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। फॉर एग्जांपल यू हैव टू ड्रॉ फ्रंटल बोन देन होल स्कल। इफ यू ड्रॉ देन बोथ द साइड ऑफ फ्रंटल कैन बी ड्रॉन, राइट। एंड लाइकवाइज you can depict little of maxilla if you draw the whole skull. Means you have to practice the diagram of whole skull, like ventral view, dorsal view, posterior view, ऐसे टाइप से थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए स्कल बनाने की। अभी इसे आप लोग के प्रैक्टिकल नहीं चले यहाँ पर होगा, अदरवाइज ये तो रेगुलर रूटीन में होता है। हम आप लोग को मैनुअल देते हैं एंड जो भी जो पोर्शन पढ़ाएंगे उसके डायग्राम बनाना ही होता है आपको, तो उसमें लर्निंग हो जाती थी। अब
तो सिचुएशन थोड़ी अलग है, अदरवाइज डायग्राम बहुत कंपलसरी है। डायग्राम बनाना एनाटॉमी में मतलब बहुत एक बॉन्डिंग टाइप का पार्ट है, ठीक है। तो और इनमें आपको पढ़नी सारी पड़ेंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बोन्स जितनी पढ़ा दी थी मैंने, जैसे आप कौन सी छोड़ सकते हो, आप टेम्पोरल छोड़ सकते हैं, आप इथमॉइड छोड़ दीजिए, ठीक है। टेम्पोरल और इथमॉइड छोड़ दीजिए। वहाँ फेशियल में से अगर हम देखें तो मैंने लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, नेजल ये छोड़ दीजिए। बाकी जो मेन मैंने पढ़ाई थी जैसे मैक्सिला है, प्री मैक्सिला, पैलेटाइन, ये हो गई थी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इनको पढ़ लें, ठीक है। हायोइड नहीं पढ़ा पाए थे, वोमर नहीं पढ़ा पाए थे, तो इनको छोड़ दीजिए। जो इतनी पढ़ाई थी स्कल बोन्स वो सारी आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक। स्कल बोन्स में कोई कंफ्यूजन तो बोलो। अच्छा, स्कल बोन्स में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो स्कल बोन्स जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट किए थे हार्ट, हार्ट स्टार्ट किया, ठीक। हार्ट में जरूर एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है हार्ट से, तो हार्ट का टोपोग्राफी, देन इंटीरियर ऑफ द हार्ट अगर पूछा है तो केवल इंटीरियर लिखना है, एक्सटीरियर नहीं लिखना है। क्या होता है कि बच्चे ना पूरा का पूरा उतार देते हैं या पूरा लिख देते हैं, बड़ा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा भी रहते हैं तो बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। जैसे हमने पूछा टोपोग्राफी ऑफ द हार्ट एंड राइट अबाउट द इंटीरियर ऑफ हार्ट, देन नो नीड टू राइट अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द हार्ट। आपको ग्रूव के बारे में नहीं लिखना है, आपको सरफेस के बारे में नहीं लिखना है, आपको बॉर्डर के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। सपोज अगर आपको एक कंपार्टमेंट पूछा है, सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल पूछा है, तो आपको केवल लेफ्ट वेंट्रिकल लिखना है, ठीक। ये नहीं कि हाँ नहीं हम ज्यादा लिखने के चक्कर में लेफ्ट वेंट्रिकल भी लिख दे रहे हैं, हम थोड़ा सा एट्रियम भी लिख दें, थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल भी लिख दें, नहीं। आपको जो पूछा है आपको उतना ही लिखना है। जैसे हार्ट क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसमें से सब एक कंपोनेंट पूछ लिया जाएगा, तो आपको उतना ही लिखना है जितना पूछा हुआ है। और ये भी याद रखें जो कॉमन स्ट्रक्चर है, सपोज आपको लेफ्ट एट्रियम पूछा है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हम पेक्टिनेट मसल्स पढ़ते हैं, तो पेक्टिनेट मसल्स तो लेफ्ट एट्रियम में भी है, राइट एट्रियम में भी है। तो अब लिखवाया जब पढ़ाया तो हम राइट एट्रियम में पढ़ाया, लेफ्ट एट्रियम में उसको नहीं लिखवाया, तो ये मतलब नहीं कि आप लेफ्ट एट्रियम में नहीं लिखेंगे, कॉमन स्ट्रक्चर तो लिखेंगे, क्योंकि जब पूरे हार्ट को डिस्क्राइब करेंगे तब आपने राइट एट्रियम में उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो आपको लेफ्ट एट्रियम में जरूरत नहीं है डिस्क्राइब करने की। लेकिन अभी अगर मान लो एक कंपोनेंट पूछा हुआ है आपसे पूरे हार्ट में से, तो उस कंपोनेंट में फिर आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, सारी मतलब उसमें जो जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो बुक्स में ऐसा लिखा है ना, बुक्स में लिखा है कि भाई राइट एट्रियम के हिसाब से लिख दिया, फिर लेफ्ट एट्रियम को बहुत छोटा या कंसाइज कर दिया, बहुत उसके मैटर को, तो टू अवॉइड द रिपीटिशन। लेकिन आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीजों को लिखना है। फिर इसके बाद हार्ट के भी डायग्राम थोड़े बहुत आपको बनने चाहिए, ठीक है। फिर हार्ट में राइट एट्रियम में 5 चीफ ओपनिंग बताई थी मैंने, ठीक है ना। 5 चीफ ओपनिंग कौन कौन सी थी? क्रेनियल वेना केवा, कॉर्डल वेना केवा, देन एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, देन कोरोनरी साइनस, देन foramen ovale in fetal life, later on it is called fossa ovalis, ठीक है। देन आप 3 तो ये हो गई, क्रेनियल वेना केवा, कॉर्डल वेना केवा, कोरोनरी साइनस, ठीक है। देन राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, देन इसके बाद वेना हेमिएजाइगस, याद करो वेना हेमिएजाइगस भी बताया था, ठीक है ना, वेना हेमिएजाइगस। एंड ये तो 5 चीफ ओपनिंग हो गई वेना हेमिएजाइगस को इंक्लूड करके, ठीक है। एंड फोरामेन वेनेरम मिनिमेरम, याद करो when small blood vessels, small cardiac veins open directly into the right atrium, and that is these openings are called foramina venerum minimerum। बताया था क्या? बताया तो था ना? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, फोरामेना वेनेरम मिनिमेरम मतलब बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स हैं हार्ट की जो itself they are opening into the right atrium, and major cardiac vein is terminating is in the form of coronary sinus, ठीक है ना। great cardiac vein is the major cardiac vein of the heart, and it open into the right atrium
and its opening is called coronary sinus. फिर याद करो कुछ वॉल्व की चर्चा हुई थी, थेबेसियंस वॉल्व की चर्चा हुई थी, बताओ भाई थेबेसियंस वॉल्व कहां पर थे? प्रियंका बताओ थेबेसियंस वॉल्व। कोरोनरी साइनस में। बिल्कुल सही, कोरोनरी साइनस में थेबेसियंस वॉल्व थे, बिल्कुल सही। And cranial vena cava and caudal vena cava, whether they are bordered by the valves, whether they have the valves? Cranial और caudal vena cava में थे valves क्या? नो मैम। No, ma'am. हाँ नहीं थे। The opening of cranial and caudal vena cava is not guarded by valves. ठीक है? However, pulmonary in the opening of pulmonary aorta is called DES. क्या बोलते हैं उसको? Pulmonary aorta, opening of pulmonary aorta at the level of right ventricle is termed as, कोनस आर्टेरियोसस। yes, conus arteriosus. Yes, that is called conus arteriosus and aorta bulbus aorticus. ठीक है ना? And it is guarded by which type of valves? Semilunar. Semilunar valves, three semilunar valves. ठीक है ना? Three semilunar valves are present in the opening of these major veins. ठीक है? अब during fetal life, as lungs was not functional, so that the blood from the pulmonary aorta, rather than reaching to the lung, it is shunted. It is shunted to the aorta with the help of ductus arteriosus. ठीक है ना? And this ductus arteriosus later on after birth converted in the form of ligamentum arteriosum. ठीक है, ये बताया था ना? एक शंट बनता है किसके बीच में? हाँ, पल्मोनरी ट्रंक और अरोटा के बीच में एक शंट बनता है, and that shunt is called ductus arteriosus during fetal life. But after birth, the lungs are functional, so the utility of it is not there, and it is converted in the form of fibrous structure. That fibrous structure is called ligamentum arteriosum, right? ठीक है, अब ये मुझे बताओ भाई कितनी पल्मोनरी वेन्स होती हैं? How many pulmonary veins? 4। Yes, 4 pulmonary veins are there. The pulmonary veins, they open in which atrium? लेफ्ट एट्रियम। Atrium. They open into the left atrium. ठीक, अभी छोटी छोटी चीजें आप लोग को सबको पता है। कॉर्डेट टेंडनी क्या है ये आपको पता है। ठीक, फिर आपको पेपिलरी मसल्स के नंबर ऑफ पेपिलरी मसल्स याद रखना है, आपको नंबर ऑफ मॉडरेटर बैंड्स आपको याद रखना है। कॉलमने कार्ने क्या है? ठीक है ना? ट्रेबिकुलर कार्ने और कॉलमने कार्ने, वेयर दे आर प्रेजेंट? बताओ कहां पर होंगे नितिन? नितिन? Yes, ma'am. Where the columnar carni are present? Left ventricle. Left ventricle. So they are not present in right ventricle. In both. No, क्लियर याद नहीं आ रहा है, मैं उतना ही पढ़ा नहीं है, वही डिवीजन नहीं किया है। अच्छा, प्रेजेंट इन वेंट्रिकल है, बट एक्चुअल पोजीशन याद नहीं आ रही कहाँ पे वेंट्रिकल्स में। कोई बात नहीं, दोनों वेंट्रिकल में मिलेंगी। कॉलमनर कार्ने, ट्रेबिकुलर कार्ने जो है ब्रॉड टर्म है, इट इज अ ब्रॉड टर्म, इट इंक्लूड्स पेपिलरी मसल, मॉडरेटर वेन, ठीक है ना? ठीक, तो दीज कॉलमनर कार्ने और ट्रेबिकुलर कार्ने प्रेजेंट इन बोथ वेंट्रिकल, ठीक है? फिर each valve receive the chordate tendinae from more than one papillary muscle, ठीक है ना? हर जो bicuspid valve, tricuspid valve है, तो हर valve the chordate tendinae are not from the one papillary muscle. हर valve की cusp जो that cusp, bicuspid मतलब two cusp है, तो एक one cusp is receiving the chordate tendinae from more than one papillary muscles, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही papillary muscle chordate tendinae प्रोवाइड करेगी एक cusp को, नहीं, क्रॉस, there is crossing also, ठीक है? तो याद रखना है आप लोग को एंडोकार्ड, ठीक है? फिर टोपोग्राफी मैंने आपसे बताई थी, एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज एट द लेवल ऑफ 6th chondrosternal joint in case of ox,
ये क्या है, ये पोजीशन याद रखना है, ठीक है ना। सिक्स्थ कॉन्ड्रोस्टर्नल ज्वाइंट, एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज सिक्स्थ कॉन्ड्रोस्टर्नल ज्वाइंट, पेरिकार्डियाकोस्टर्नल लिगामेंट किस में मिलेगा, ऑक्स में। ऑक्स में मिलेगा। पेरिकार्डियाकोफ्रेनिक लिगामेंट किस में मिलेगा, डॉग में मिलेगा। डॉग में। हाँ, पेरिकार्डियाकोफ्रेनिक लिगामेंट, पेरिकार्डियाकोस्टर्नल लिगामेंट, ठीक। देखो बच्चों क्या है, नो डाउट ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो आप लोग तो देख देख के लिखना है ना, लिखोगे ही देख के, लेकिन क्या है पढ़ जरूर लेना थोड़ा। क्या है अभी तो चलो इजी है सिस्टम, और लेटर ऑन दो महीने बाद खुल गया, आप लोग आ गए, फिर एग्जाम जो है अगला एग्जाम ऑफलाइन होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ो ही ना, पढ़ना जरूर है, पढ़िए चीजों को, ठीक है। लिखना है, जैसा लिखना है लिखिए, लिखने में कोई पाबंदी नहीं है कि देख के लिखो, बिना देख के लिखो, जैसे लिखना है लिखो, लेकिन बहुत अच्छा लिखो, क्योंकि माहौल कॉम्पिटिटिव होता है यहाँ पर भी, है ना। मतलब आपका सॉरी, लिखने में कंजूसी नहीं करना है, लिखना अच्छे से है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है, और डायग्राम बनाना है, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस तो इसी बेसिस पे हुआ, कंटेंट में जो ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सभी ने लिखना है। बस अब यहाँ पर ये रहेगा कौन ने कितने अच्छे से अपनी चीजों को प्रेजेंट किया है, अब ये मैटर करेगा, ठीक है, क्योंकि देख देख के तो सबने लिखना है। और अंतर वो इसीलिए बोल रही हूँ कि अब वो क्या है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मार्क्स तो कागज में जो मिलेंगे फिर वही होंगे, इसलिए थोड़ा तो आप लोगों को उस डायरेक्शन में सोच के ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसके बारे में, हार्ट के बारे में। और क्या हार्ट में क्या समझ में नहीं आया, जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, कुछ और समझना है हार्ट में? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हार्ट के बाद हम माउथ, है ना, मतलब हेड में हमने माउथ कैविटी पढ़ा, माउथ कैविटी में सारा हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ, देन टीथ, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने सलाइवरी ग्लैंड भी पढ़ा, तो ये सारी चीजें आपको अभी अभी रिसेंटली पढ़ी है, तो आई थिंक वो बहुत वो चीजें तो आपको फ्रेश ही होंगी। इसमें वो जो मैं पूछती थी क्वेश्चन ड्यूरिंग, आप जब पढ़ते थे कि कौन कहाँ पेपिला सलाइवेलिस है, कहाँ पेपिला इंसिसिवा है, वेयर द व्हिच डक्ट्स आर ओपनिंग ओवर हियर, किसमें टेस्ट बर्ड्स हैं, किसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं है, और इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो हार्ड पैलेट इंपॉर्टेंट है, टंग इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट पैलेट कम पूछा जाता है फॉर रिटन, मतलब थ्योरेटिकल के हिसाब से, तो हार्ड पैलेट पूछा जाता है, टंग यूजुअली पूछा जाता है। टीथ में मतलब बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, छोटे छोटे टर्म जो पढ़ाए थे वो याद रखना है आपको, ठीक है। और एजिंग बाय डेंटिशन, ठीक है, ये चीजें बड़ी याद रखना है। हॉर्स में और रॉक्स में दोनों का पढ़िएगा, एजिंग बाय डेंटिशन, इसमें भी दिया हुआ है, घोष में भी दिया हुआ है, हाउ द एज डिटर्मिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाय इरप्शन ऑफ टीथ, तो वो भी आपने करना है। सबके डेंटल फार्मूला याद रखने हैं, सारी स्पीसीज के डेंटल फार्मूला बनने चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ बनना चाहिए, ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक। फिर इसके बाद टीथ भी हमने डिटेल में पढ़ा था, हिप्सोडोन, ब्रेकियोडोन, लोफोडोन, ठीक है, ये सारे टर्म आपने पढ़ने हैं फिर से, ये सारी चीजें, ठीक। और चीक भी पढ़ा था, चीक, ठीक है। माउथ कैविटी है सच पढ़ा था, तो माउथ कैविटी अगर लिखने को आए तो माउथ कैविटी को कैसे लिखोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ाया था कि माउथ कैविटी रूफ किससे बना, लेटरल वॉल कहाँ से, फ्लोर किससे, फिर माउथ कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेस्टिबुलम ओरिस एंड कैवम ओरिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। लिप्स, चीक, फिर टंग में यूजुअली क्या है, कंपैरेटिव बड़ा पूछा जाता है, टंग है, हार्ड पैलेट है, तो कंपैरेटिव पॉइंट जरूर याद रखना, मतलब याद रखना है वाली बात है कि लिखना जरूर है उसके।
और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि आप क्या है कंपैरिजन में फालतू फालतू चीजें लिख रहे हो। कंपैरिजन मतलब होता है जो एक्चुअल कंपैरिजन है, डिफरेंशिएटिंग चीजें लिखी जाती है कंपैरिजन में। बहुत सारी चीजों का पूछा जाएगा, बोन्स में भी ऐसा होगा कि बोन्स में भी आपको लिखा बोलेगा कंपेयर विथ थॉट्स। तो जो डिफरेंस है वही दिखना है, कहानी बनाने के लिए कोशिश नहीं करना है कि अपने मन से कहानी बना रहे हैं पेज भरने के लिए। तो पेज भरना बहुत बड़ा इशू नहीं है, पेज नहीं भरना है, ठीक है। उस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है चीजें, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में यूजुअली पैरोटिड है या मैंडिबुलर है, ये बड़ा मतलब कभी आ सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो इनसे बनते ही बनते हैं, वो तो याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग डक्ट, ओपनिंग ऑफ द डक्ट, ठीक है। कौन सी बताया भी था मैंने, पैरोटिड इज लार्जेस्ट, HPP इन हॉर्स, पिग, पैरोटिड इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। टर्मिनोलॉजी बड़े अच्छे से पढ़ लेना। स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजी हमें लग रहा पायल मैडम ने पढ़ाई थी टर्मिनोलॉजी आप लोग को ना, कि राखी हमने पढ़ाई थी, किसने पढ़ाई थी टर्मिनोलॉजी? कंडाइल, ट्रोक्लिया, कैपिचुलम पढ़ाया था ना ये? यस मैम। पायल मैम ने पढ़ा था। हाँ, तो ये जो टर्मिनोलॉजी भी पढ़ना है, इसको छोड़ना मत। ऑब्जेक्टिव में और वैसे पूछा जा सकता है टर्मिनोलॉजी, है ना, तो टर्मिनोलॉजी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो पोर्शन वैसे मैडम ने सारी बोन्स पढ़ाई थी मैडम ने, तो बोन्स तो इम्पोर्टेंट है। बोन्स समझ लो कि मतलब पूरी एनाटॉमी की जान होती है। स्कैपुला एक ऐसी चीज है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है और हर बार पूछा जाता है। स्कैपुला है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी चीजें आपने बननी चाहिए, ठीक है। तो बोन्स तो उसकी जान है पूरी एनाटॉमी की, तो वो तो बनना ही बनना है, ठीक है। उस पर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, क्योंकि स्पीसीज बाय डिफरेंस पूछा ही पूछा जाता है, तो बिल्कुल क्लियर कर दे। स्पीसीज डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन, इन विच स्पीसीज सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन इज प्रेजेंट? सो डॉग में है और पिग में भी है क्या सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन? In which bones supratrochlear foramen is present? ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूजुअली हम बोलते हैं डॉग, है ना, सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन प्रेजेंट इन डॉग। पिग में भी है सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन, ठीक है। याद रखना वो जो कुछ एफ इटैलिक का एफ शेप ह्यूमरस, ये भी है। एफ जैसा हम एफ नहीं बनाते हैं इसमें, तो उस टाइप से लिख देते हैं एफ टाइप बना के, दिस टाइप ऑफ शेप ऑफ ह्यूमरस इज प्रेजेंट, दैट इज इन केस ऑफ पिग, ठीक है। तो ये भी आपने पता होना चाहिए। डेल्टा टिब्रोसिटी इज वेल डेवलप्ड इन हॉर्स, बाइसिपिटल ग्रूव इज सबडिवाइडेड इन व्हिच स्पीसीज, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए चीजें, मतलब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। एक्रोमियन प्रोसेस इज ब्लंट इन व्हिच स्पीसीज, ठीक है, और एब्सेंट इन व्हिच स्पीसीज, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फिर ढूंढते रह जाओगे, नहीं बनेगा तो पहले ढूंढोगे, ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कार्पल्स, कितनी कार्पल्स होती हैं इन केस ऑफ ऑक्स? 7 6 6, yes, 6 carpals in case of ox. In case of dog, horse, 7, 7 pig, 8, 8. Okay. 8 In case of pig, 8. ठीक है, 6, 7, 7, 8 ये याद रखना है, ठीक है ना, कार्पल बोन्स, ठीक। तो ऐसे याद रखनी है चीजें। फिर मेटाकार्पल की बात अभी आई थी। 3 मेटाकार्पल्स प्रेजेंट इन केस ऑफ हॉर्स। कौन कौन सी है 3 मेटाकार्पल्स में? कौन कौन सी होगी? थर्ड वन इज लार्जर वन, लार्ज मेटाकार्पल रिप्रेजेंट द थर्ड। और स्मॉल कौन सी होगी? यहाँ से सेकंड, वहां से फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ आर स्मॉल मेटाकार्पल एंड थर्ड मेटाकार्पल इज लार्जेस्ट। अब यहाँ से अगर हम एनिमल में देखें, ऑक्स में, तो लार्ज मेटाकार्पल इज अ फ्यूज्ड वन that is representing third and fourth fused, क्यों बच्चों, है ना। और स्मॉल मेटाकार्पल फिफ्थ, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है कि विच मेटाकार्पल इज रिप्रेजेंटिंग विच वन, ठीक।
और रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना में जैसे डिस्टल इंटरओसियस स्पेस इज एब्सेंट इन विच स्पीसीज, बताओ। डिस्टल इंटरओसियस स्पेस इज एब्सेंट इन विच स्पीसीज? हाँ, हॉर्स, बिल्कुल सही। In case of horse, distal interosseous space is absent Horse. because ulna is not reaching to the distal extremity. In case of horse, ठीक है, तो distal interosseous space is absent in there. Semilunar notch, in which bone the semilunar notch is present? अल्लाह। हाँ, बिल्कुल सही, अल्लाह में, ठीक है। फिर एंकोनियस प्रोसेस, अल्लाह में कहाँ? हाँ, कहाँ? एंकोनियस, Proximal. proximal extremity. प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमी, मतलब एलेक्ट्रोनान प्रोसेस का जो एक पॉइंटेड प्रोसेस है ये, ठीक है ना। इट इज मींस बाउंड इन द सेमिलुनार नॉच, दैट इज एंकोनियस प्रोसेस, ठीक है। फिर एक्सटेंसार प्रोसेस, नहीं एक्सटेंसार प्रोसेस नहीं, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल एक्सटेंसार प्रोसेस भी है। किस फेलिंग्स में एक्सटेंसार प्रोसेस है, बताओ। एक्सटेंसार प्रोसेस प्रेजेंट इन व्हिच फेलिंग्स? फेलिंग्स, थर्ड फेलिंग्स में, ठीक है ना। देयर इज एक्सटेंसार प्रोसेस इन थर्ड फेलिंग्स। स्टिलॉइड प्रोसेस, स्टिलॉइड प्रोसेस किस बोन में मिलेगा? स्टिलॉइड प्रोसेस अल्ना, डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ अल्ना, ठीक, स्टिलॉइड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ डॉग, रेडियस एंड अल्ना, दे आर द सेपरेट बोन, ठीक है ना, दे आर द सेपरेट बोन एंड दे आर आर्टिकुलेटिंग इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी बोथ। अल्ना इज नॉट फ्यूज्ड विद द रेडियस इन केस ऑफ डॉग, ठीक है, याद होना चाहिए ये आपको, ये चीज, ठीक। और प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट इज पॉसिबल इन व्हिच स्पीसीज? हियर, डॉग, ठीक है ना। केस ऑफ डॉग इट इज टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक। अब क्या बचा? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल is comprised of how many bones in case of ox? बताओ भाई। पेक्टोरल गर्डल is comprised of how many bones? हाँ किसले बताओ। 3 bones. 3 bones. Scapula, हाँ, clavicle, and humerus. ह्यूमरस। Yes, ma'am. क्या हो गया है किसले? पूरी एनाटॉमी गोल गोल घुमा दी आपने। आशा, आशा, आशा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. बताओ भाई, पेक्टोरल गर्डल ऑफ ऑक्स कौन कौन सी बोन्स होंगी? पेक्टोरल गर्डल ऑफ ऑक्स नहीं पता? No, ma'am. सबसे पहला क्वेश्चन है। नहीं। हाँ, दीपाली, दीपाली पटेल, Yes, हाँ ma'am. बताओ भाई, पेक्टोरल गर्डल कौन कौन सी बोन्स होंगी ऑक्स के केस में? No, ma'am. हाँ, नहीं पता. नहीं पता। नितिन, यस मैम। बताओ पेक्टोरल गर्डल। मैम नो आइडिया मैम, याद नहीं है। ये तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, बेस है ये तो एनाटॉमी का। क्लेविकल तो होती नहीं है इनमें। बिल्कुल सही, क्लेविकल नहीं होती, ठीक। और तो स्केपुला और ह्यूमरस। बेटा ह्यूमरस कहाँ पेक्टोरल गर्डल में होगी? सब ह्यूमरस बोल रहे हैं। ह्यूमरस इज द बोन ऑफ आर्म रीजन। पेक्टोरल गर्डल
has 3 bones, scapula, clavicle and coracoid. In case of ox, only scapula bone is present in pectoral region and coracoid is in the form of process attached with the scapula. ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में तो coracoid, scapula and clavicle तीनों बोन है ना, लेकिन ऑक्स के केस में हम बोलते हैं स्कैपुला इज बोन प्रेजेंट इन पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल गर्डल रीजन. ठीक है, केवल स्कैपुला है एंड कोरेकॉइड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस हम बोलते हैं. ठीक, तीनों बोन होती हैं डेवलप फाउल में. इन केस ऑफ फाउल ऑल द 3 बोन्स आर प्रेजेंट इन पेक्टोरल गर्डल रीजन, स्कैपुला, क्लेविकल एंड कोरेकॉइड. एंड इन केस ऑफ डॉग, clavicle is rudimentary is embedded in the brachiocephalicus muscle. पढ़ा है ना बच्चों? बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है. The clavicle is rudimentary or in which species the clavicle is embedded in a muscle. तो clavicle is rudimentary in case of dog is embedded in brachiocephalicus muscle. ठीक है ना, तो बहुत छोटी सी बोन होगी जो कि आर्टिकुलेशन में कोई उसका रोल नहीं होगा, बोन के साथ कनेक्टेड नहीं होगी एंड इट विल बी एम्बेडेड इन ब्रेकियोसेफेलिकस मसल. ठीक है, तो इस ऐसे टाइप से आपको आंसर करना है. ठीक, अच्छा अब ये बताओ, हाउ द फोरलिम्ब इज अटैच्ड विद द ट्रंक. हाउ द फोरलिम्ब इज अटैच्ड विद द ट्रंक. हाँ, कुछ सही बोल रहे हो लेकिन अभी टर्म सही नहीं आया. और याद करो. फिर से बोलो, वो टर्म सही नहीं आया आपके टंग पर. सिनार्थ्रोसिस. सिनार्थ्रोसिस नहीं, सिनार्कोसिस है. हाँ हाँ अमन बोलो. हाँ, सिनार्कोसिस. नहीं नहीं नहीं. सिनसार्कोसिस. सिनसार्कोसिस भूल गए? सिनसार्कोसिस मसल. ठीक है ना, द लिम्ब, whole limb is attached with the trunk with the help of sinsarcosis. Joint is called sinsarcosis. ठीक है, and these are the muscles of pectoral girdle region which connect the whole limb with the trunk. ठीक है, ठीक. सबसे पहले सिनसार्कोसिस जॉइंट आर्थ्रोलॉजी खोलना, वहां बताया हुआ है सिनसार्कोसिस मैंने. ठीक, तो इस टाइप से पढ़ना है आप लोगों को. ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखना है. अगर जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी लिखी पूछी है तो केवल प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी लिखना है. होल बोन पूछी है तो होल बोन लिखना है. कोई पर्टिकुलर सरफेस पूछा है तो केवल सरफेस लिखना है. ठीक है, तो इस टाइप से आपने करना है अटेम्प्ट. ठीक, अब बताओ किसी को कुछ पूछना है, वरना आप 2 दिन आप लोग को तैयारी का टाइम दिया जा रहा है. अब कल परसों क्लास नहीं होगी, सीधे 28 को एग्जाम होगा. एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए. बोलो भाई, एनी क्वेरी रिलेटेड टू एग्जाम. मैम हाँ, मैम एग्जाम 2 घंटे का 1.5 घंटे का? एग्जाम जो है 2 घंटे का है आपका. उसमें लिखा होगा ना, जो उसके ऊपर जो अभी मैडम ने फॉर्मेट भेजा है फ्रंट पेज का, उसमें क्या लिखा है मैडम ने? मैम 2 घंटे दे दिया है. हाँ, तो 2 घंटे. हाँ, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का. और 2 घंटे का जैसे टाइम है तो आपको मतलब उसी में ही मतलब 5 मिनट बचा के रखना है ताकि आप उसका वो बना लो, पीडीएफ बना के और आप सेंड करो. ठीक है, मतलब 2 घंटे का मतलब है कि 5 मिनट चल पाए जाएगा इधर उधर. 5 मिनट से ज्यादा इधर उधर नहीं चलेगा, फिर वो चीजें फिर रिजेक्शन में जाने लगेगा, है ना. तो फिर तो लोग आराम से लिखते रहेंगे बैठे बैठे, तो वो चीज नहीं होगी. ठीक है, 2 घंटे का टाइम रहेगा. और एनाटॉमी में का टाइम कम पड़ता है, ये बच्चों याद रखना है. एनाटॉमी लेंथी है, फिजियोलॉजी और एलपीएम में आपको काफी टाइम बच जाएगा. एनाटॉमी में क्या लिखने को बहुत होता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड पहले से बना के रखना.
ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। फ्रंट पेज वगैरह अपना सारा पहले से भर के रख लो, पहले से बना लो फ्रंट पेज, ठीक। 2 के पहले बना के आप फ्रंट पेज सब बना के रखिए। पेज का नंबरिंग पहले से दे के रखिए। जैसे स्पाइरल कोई नोटबुक हो आपके पास, उसे पहले से नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसा 15 तक डाल लो। 15 पेज करीबन लग ही जाते हैं, 10 से 12 15 पेज, 15 नंबर डाल लो। फिर जितने भी टोटल पेज भरे, सपोज आपने 14 पेज भरे या 15 पेज भरे, तो फिर आप कैसे लिखोगे, 1/15, 2/15, 3/15। तो बाय 15 बाद में कर लीजिएगा और नेमिंग पहले दे दीजिए। तो ये टाइम आपका बच जाएगा, आपका एक टाइम वो बच जाएगा। किसी को अगर मार्जिन खींचने की जरूरत पड़ती है तो मार्जिन खींच के और रख लीजिए पहले से। तो ये काम, इतना काम आप लोग पहले से करके रख सकते हो, ठीक है। यस मैम। So if there is no question, then the class, now I'm going to end the class. अब आप लोग पढ़ें अच्छे से 2 दिन, और अब तो ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। बस अब ये देखा, अब इसमें क्या टेस्टिंग क्या चल रही है, कौन कितने अच्छे से प्रेजेंट करेगा। बस नॉलेज क्या है, देख के लिखना है, तो नॉलेज का तो कोई इशू ही नहीं है। बस यही इशू ये है कि कौन अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल। ओके, हाँ ओके। थैंक यू मैम।